So I'm trying to do is I'm trying to create a facility where I will have the payroll number in my combo box, drop-down menu. When I select the payroll number drop-down menu, and when I click on the report, so I get the report of that particular payroll number with the given name, with the family name. एक invoice ही produce हो, एक invoice sort of like bill produce हो, the company branch हो, and the sales. Okay, and what I can do is जो जितनी भी sales हुई है ना, we will give 10% commission to that person, and we will say is percentage commission given. लिखा है नीचे. What I'm trying to say is कि I have what I have over here is ये आपका आ गया वही ड्रॉप डाउन मेन्यू. ठीक है, ये ड्रॉप डाउन आ गया. ठीक है, आपने सेलेक्ट किया, इसके नीचे आपका आएगा रेडियो बटन्स. सो यू विल हैव ऑप्शंस ओवर हियर, ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शंस. ठीक है, यू विल सेलेक्ट 10%, 20%, 50% commission. Okay, let's exaggerate. You select 20% commission. कब तक select करते हो? You say print invoice or print payslip or whatever. Let's say payslip. उसमें रिपोर्ट ओपन हुए इन एन इनवॉइस फॉर्म में प्रिंट होगी, जिसमें ऐसा डेटा आएगा. और यहाँ साथ क्या लिखा आएगा, इफ 20% इट हैज बीन सेलेक्टेड, यहाँ लिखा है कमीशन गिवन 20 लिखा. और फिर क्या, जो आपकी टोटल सेल्स थी जो यहाँ आ रही है, उसका लिखा है कि 20% ऑफ द सेल्स लिखी है, मतलब 20% ऑफ द सेल्स. एंड देन लास्टली दैट्स इट, 20% सेल्स कितनी. ये दो कैलकुलेशन हमने करनी है. But this is your report. This is your form. इसको इससे कनेक्ट करना है. How can we do that? I repeat again. पहला लेक्चर क्या था? पहला लेक्चर था कि we had to do was we simply made a drop-down menu and we had a button. Select किया और report print हो गई. Is this done? पहला हो गया, right? Yesterday what we did was we extended it. हमने इसके दरमियान में क्या किया? We simply add is radio buttons, and radio buttons may we just had an option print in this report or print in this report or print in this report. Is side pay we had report 1, report 2 and report 3. Yes or no? We had 3 reports. So if I would have selected this, it would print in this report. If I would have selected this, it would print in this report. If I would have selected this, it would print this report. Yes or no? Right, get my point? Or ये button obviously would print, but this button को हमने क्या किया था, हमने इस पे एक मैक्रो एम्बेड किया था. वी हैड मैक्रो वाज एम्बेडेड. ठीक है, ये मैक्रो में इफ द नल स्टेटमेंट थी, इट वेंट एंड चेक्ड ऑल दिस, उसके मुताबिक ओपन करता. सो मैक्रो वाज द कोडिंग एट द बैक व्हिच वी अटैच्ड टू अ बटन एंड इट वाज द इफ द नल कंडीशन. यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, ईमान थोड़ी कंफ्यूज लग रही है मुझे, मैं दोबारा करा देता हूँ आज. ठीक है, राइट. अब क्लियर था मैक्रो? ठीक है, नहीं कल किया था ट्रेंड, वर यू इन द क्लास? तो आपने कल क्यों नहीं पूछा मुझसे? यू आर सपोज्ड टू से इट राइट अवे बेटा. वे यू बीन स्टडीइंग फ्रॉम मी फॉर लाइक 1.5 year नाउ. आपके मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो आपको समझ नहीं है, क्यों नहीं आपने पूछा. यू आर सपोज्ड टू आस्क. ओके, हाँ, मुझे जो फिजिकली था आपको पूछना चाहिए था, सर आई डिडंट गेट इट, आप क्या कह रहे हैं. Don't do it next time. Okay, so मगर पहले मैं ये कर लूँ, फिर मैं मैक्रो रिपीट कर दूँ. ठीक है, अच्छा. अब मैं ये चाह रहा हूँ, सो एक्सप्लेन यू, डिड आई एक्सप्लेन यू कि मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ अभी राइट नाउ. जो भी ऑनलाइन है आपको समझ आई है? जिसने क्लास मिस किया, फ्रैंकली दिस कैन बी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे लग रहा है इस दफा ऑटोमेशन P4 में आना है. ठीक है ना? सो लेट्स डू इट रियली वेल. Anyway, what can I do? So what we'll do is, first of all, अब गौर सुनो, lecture being recorded. मैं blank form create करता हूँ. So मैंने decide किया है कि सबसे पहले I want is a combo box. ठीक है, ये आ गया combo box. I want the combo box to get values from another table. That's the first option I select. तो मैं combo box में जा रहा हूँ. I want is a primary key to be entered into a combo box. तो जो भी primary key होगी मेरे table के अंदर, as per the question says that you're supposed to select through the customer ID.
और you're supposed to select through the instructor ID, तो obviously वही आएगी ना उसके अंदर. ठीक है, next. अभी तो हम assume कर रहे हैं. From this table, select the table, and then select the payroll number, which was the primary key, जिसके थ्रू सर्चिंग होगी. ये तो ऑब्वियसली बात है ना, आपको पता है इस बात में, सर्चिंग थ्रू द प्राइमरी की होती है. विल यू एवर सर्च थ्रू फॉरेन की? यू नेवर सर्च थ्रू फॉरेन की, है ना. अब मोइजा के नाम से सब सर्च करोगे तो यू विल हैव लॉट्स ऑफ मोइजास इन द स्कूल. देयर इज नो पॉइंट. ओके, so there has to be a unique key that represents every record. You get my point? Okay. Next year or next year, fine, this is it, finish. So eventually इसको run के देख लिया करो, I get the primary keys. ठीक है, जो भी पेड़ में select करूंगा I get that. ये तो clear हो गया. Yes or no बेटा? I'll just save it. I'll save it as form. तो इसकी property check करो. What do I get? Combo 0. Now, do you agree with me कि अगर मैंने इस तक पहुंचना, मैं किस तरह पहुंचूंगा? I'll go to forms, I'll go to form 1, and I'll go to combo 0. Yes or no? इस तक इसका पाथ किस तरह आएगा? मैं जब भी किसी फोल्डर में किसी का ढूंढता हूँ, if I want to reach this file, where is it? It's over here, right? In the same way, your objects within a database form come through a particular path. You have to refer to them. We've done it in Java as well. Documents dot form one form one dot sname dot value. याद है? Validative किया था. You have to do it everywhere. अब if I want to make a button, तो obviously मैं क्या करूँगा? मैं एक query बनाऊँगा. Okay, let me do that. So I'll go to create query design. Conceptually, please को समझना आपने. मैं ऐसा करूँगा कि मैं आपको स्पेसिफिक पेपर आज नहीं करा रहा. मैं there is an activity tour Africa. will हम उस पर काम करते हैं, क्योंकि वो भी काफी लेंथी है, वो भी अराउंड 40 मार्क्स की है, मगर जो स्पेसिमेन पेपर 2017 है, दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेट फॉर यू. खैर है, हम इस पे एक और दिन लगा देंगे. फ्राइडे को I'll do स्पेसिमेन पेपर P4 पूरा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी जल्दी कराऊँ तो फायदा नहीं. जो करें अच्छा करें. ओके, राइट. सो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि फ्रंट एंड पे if I select from here a particular payroll number, तो obviously criteria payroll number पे लगाऊंगा ना, यहाँ कहीं तो नहीं लगाऊंगा. I will put over here, so I'll type over here is forms exclamation mark form 1 exclamation mark combo 0. Every time I want to give a path, I use the exclamation mark. I think so. There is no doubt about that. Yes or no? I'll say that I'll leave it as QD1. अब होगा है कि जब मैं इसको रन करूंगा, I get is this. You see, I get this. Why? Because I've selected this. If you can see. ठीक है. If I select from here is this, what do I get? इसको run करो दोबारा. I get is this. Yes or no? ठीक हो गया? Right. So now what's happening is, हमने अब करना क्या? हमने काम करना है कि मैं इसके बनाता हूँ इनवॉइस. अच्छा, होल्ड ऑन. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन जो भी है, फातिमा बेटा और कौन है? फातिमा एंड अलीना. Is it Alina? It's Laiba. Laiba, Fatima, Mariam. If you can hear me, till now, is it clear? बेटा, आप अगर if you're online, frankly speaking, you have to be more attentive. आपको पता है, जब फिजिकली स्टूडेंट अटेंड कर रहे होते हैं, obviously they tend to grasp it more. So I want you to respond more and you tell me more. Okay, your classes are very very important right now. You're not in A1. तो आप गौर से सुनो, मेक योर नोट्स. नो, इफ यू हैव अ क्वेश्चन आस्क मी राइट नाउ. डोंट टेल मी ऑन फ्राइडे के सर ऑनलाइन में जब हमने किया था वी डिड नॉट गेट इट. ओके, मैं हर बार पेस स्लो डाउन नहीं कर सकता. लेट मी अचीव माय टारगेट. ओके, मैं ये नहीं चाह रहा मैं आपका जनवरी तक ले जाऊं सिलेबस खत्म करना. दैट विल बी अ लॉट ऑफ रिस्क फॉर अस. वी हैव टू इंशाल्लाह फिनिश बाय द एंड ऑफ अक्टूबर द सिलेबस. नवंबर से हमने रिवीजन स्टार्ट करनी है. सो लेट मी जस्ट have my consistent speed. Mariam, Laiba, Fatma, if your mic is not working, tell me right now. You got what I said in the chat.
but reply me one by one. Yeah, right. Okay, so you can, if you have a question, you can even type it in and you can ask me, okay? If you have any question coming up. अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी इनवॉइस बनाते हैं। इनवॉइस जो होती है ना, उसको आप कॉलमनर समझो, ठीक है? तो मैं कहूँगा रिपोर्ट विजिट पे जाऊंगा। सो हमने अभी तक सीखा हम रिपोर्ट डायरेक्टली बना सकते हैं ना। वी कैन डायरेक्टली क्लिक एंड वी कैन मेक अ रिपोर्ट, ठीक है? मगर लेट्स डू समथिंग, मैं ये नहीं करता। लेट्स गो टू रिपोर्ट विजिट एंड let me transfer all of them, or let's do something, let's make column, okay? Next and finish. So we get this. Obviously result क्यों नहीं आ रहा? Obviously नहीं आ रहा है क्योंकि ये भी run नहीं हो रहा. So if I select anything, let me go back, let me view it again. So I get the data. You get the data? Yes or no? अब हम अपना काम शुरू करते हैं। What I'll do is कि पहले तो इसको थोड़ा arrange कर लूँ so that it looks like, क्योंकि this is something that you will be required to do, तो मैं साथ साथ आपके कर लूँ ना। So पहली बात तो इसका कलर हम थोड़ा कर देते हैं bold and make it black, and let's increase the font size, थोड़ा visible हो। What do I get? Something like this. Fine. इसको मैं चाहूँगा कि इसकी alignment हो। I know these are some very basic things, मगर and what I would like to do is sales हो गया। Fine. So I could even do is, please गौर से सुन लो, make random extra चीजें कर रहा हूँ। I'll do Control X. I will just put is this rectangle, okay, and Control V, and I'll just put this over here. मैंने कहा ना मैंने random चीजें कर रहा हूँ। One second. So we get something like this, okay? We get slip print हो रही है सब, like बन गया sort of like. Now the point is, let's come to the actual thing. Actual thing is कि I want over here is obviously पहले form में बना तो लूँ. Let's make an option of percentage commission to be given to the following payroll number. So what we'll do over here is we'll use XYZ, select from here, and I'll say, let's say 0%, 10%, 20%, 30%, okay? And lastly, let's give like 40%. Next, I don't want any default value. Next, now this is important. Yesterday what we did was we left the value as 1 and 2. पता है आपको? अब मैं करूँगा मैं value को change करूँगा because I want to use these values. How? I want to use these values as this should be 0, this should be 10, this should be 20. जो percentage है, I am going to change that. Or ये 40. Next. So I want the radio buttons. Yes, I don't want checkbox. I don't want toggle. So fine. Okay. As so, yes. Let me just again make all. In fact, let me make all this a bit more visible. And let's. Here we go. And I can say from here is select commission. So we get this. This means I'm getting this. मैं इस like करता हूँ और मैं कहता हूँ चलो इस payroll number को let's give this much. You get the point, right? So what we can do is now कि आपको पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है this must be frame. One second. Frame 2. It's frame 2. The name of this is frame 2. The name of this was combo 0. Okay. Any problem till here? Yeah, अब मैंने सिर्फ ये बनाया. Now I want is obviously I want to make a button
और बटन ओपन करे मेरी ये रिपोर्ट, लेट मी जस्ट सेव इट, इसका नाम मैंने क्या रखा है, क्यूरी वन, ओके फाइन, आई वांट अ बटन एंड ए बटन शुड ओपन अप क्यूरी वन। ठीक हो गया, चलो ये काम भी कर लेते हैं क्योंकि माइक्रो का काम ही नहीं इसमें। सो आई जस्ट कम टू रिपोर्ट ऑपरेशन, प्रीव्यू रिपोर्ट क्यूरी वन, और प्रीव्यू रिपोर्ट या प्रीव्यू पे स्लिप, ओके नेक्स्ट फिनिश। सो राइट नाउ तो ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, अभी तो सिंपल इसको ओपन करेगा। आई डोंट हैव एनी डिटेल्स। नाउ लेट्स डू दैट। सो वी हैव टू गो बैक टू द क्यूरी, और अब द न्यू पार्ट स्टार्ट्स। अभी तक whatever I did, we have done this yesterday. मैंने आज नया नहीं कराया, it was a repetition of yesterday's lecture. अब मैं चाह रहा हूं कि invoice में now the changes should be done in the invoice, changes should be done in the report. When the examiner says that do changes do in the invoice or the report, इसका मतलब अपने रिपोर्ट में आके आपने कुछ टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं, आपने कुछ करना है। तो इफ आई वांट, मेरी बात सुनो, मैं ये चाह रहा हूं कि फॉर्म से ये 20 लिखा आ रहा है, तो ये 20 मैं बस सिर्फ 20 यहाँ डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। याद है वैल्यू 20 थी उसकी। हाउ कैन आई डू दैट? कोई रफ आइडिया मैं किस तरह कर सकता हूँ कि यहाँ लिखा है परसेंटेज गिवन, परसेंटेज कमीशन गिवन, इस पर्टिकुलर पेरोल नंबर को कितना परसेंटेज गिवन है। तो अगर यहां से मैंने सेलेक्ट किया ये पर्टिकुलर पेरोल नंबर, दिस वन, दिस पर्टिकुलर, तो इसको मैं कितना परसेंटेज देना चाहता हूँ। इसके लिए आई कैन यूज अ टेक्स्ट बॉक्स and I can put a path in the text box. Let me show you. Are these not text boxes? They are text boxes, na? So why should I not add another text box? Let's do it. तो मैं काम करता हूँ। अगर मैं इसको ही just let me can experiment something because I just don't want to change the, so ID बस change नहीं होनी चाहिए। इसकी ID है excellent हो गया। So what I'll do now is इसको कर देते हैं percentage commission. And how do we calculate this? Let's have a look. I'll remove this. इसके लिए what I'll do is मैं इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज ओपन हो गई, then just go to the control source. Use the control source, okay, just click on these three dots. ये जरा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। इज इक्वल टू मेरे डेटाबेस है, ये डेटाबेस में, इस डेटाबेस में आई हैव फॉर्म्स, और इस और सारे फॉर्म्स ओपन करो, फॉर्म वन, एग्री विद मी? मतलब मैं इधर आया हूँ ना, आई एम ब्राउजिंग कि मेरी डेटाबेस वन है, इसके अंदर मेरे पास है फॉर्म्स, है फॉर्म में फॉर्म वन। सो इसमें से आई वांट टू सी कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से आई वांटेड वाज फ्रेम टू। सो आई कुड हैव टाइप्ड इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू अनदर वे, यू कुड हैव टाइप्ड इट, दैट्स जस्ट अनदर वे, ठीक है? सो आई जस्ट प्रेस ओके। क्या हो रहा है? वी हैव डन दिस बिफोर। सिर्फ ये किया, टेक्स्ट बॉक्स को मैंने इक्वल कर दिया है कि गो टू माय फॉर्म्स, गो टू फॉर्म वन, और वट एवर इज इन फ्रेम टू करंटली मुझे वो डिस्प्ले करा दो। तो क्या हो रहा है? नाउ इफ आई कम हियर एंड इफ आई सेलेक्ट फॉर 30 and obviously if I run this I get 30. If I come back here and if I make it 40, if I preview it I get 40. Interesting or not? या सिंपल सी बात है, इसको मैं बंद भी कर देता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, अगर मैं करता हूँ 0 I get 0. If I have 10 I get 10. If I select 20 I get 20. Yes or no? मगर अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, आई वांट टू डू सम कैलकुलेशन एज वेल। मतलब ये है, आई वांट इज कि जो जितनी भी सेल्स हुई है, इफ आई सेलेक्टेड 10%, तो 10% ऑफ द सेल्स यहाँ डिस्प्ले करा दे। सो हाउ डू यू डू दैट? सिंपल सी बात है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड लेट मी जस्ट पेस्ट इट, कंट्रोल वी, सो दैट फॉर्मेट, द रीजन आई एम डूइंग इट, मुझे फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, एंड आई विल नेम इट एज समवन टेक्स अकाउंटिंग एंड स्टफ लाइक दैट। क्या कहते हैं इसको? What do we call it? क्या कहते हैं इसको? We call it like percentage commission. Fine. Did you make some point? Percentage commission amount. Does it make sense? Yes, it does.
So what we do is, अब हम क्या करेंगे? Here we go. Now what we do is, help me out. सोचो क्या करेंगे? सोचो, come on, anyone online वगैरह क्या करेंगे? I have the sales. इस पे क्या आ रहा है? 20 लिखा आ रहा है ना? मतलब इट्स सेम थिंग ना, मेरे काम पे कोई 20 लिखा रहा है, इसको मैं रीयूज कैसा कर सकता हूँ? सो अगर मेरे पास, अगर अगर मैं फ्रंट एंड से 20 सेलेक्ट कर रहा हूँ या 10 सेलेक्ट कर रहा हूँ या 50 सेलेक्ट कर रहा हूँ, वेरी गुड, मेरे पास परसेंटेज अमाउंट आ रही है मेरे रिपोर्ट में, इनवॉइस में, बिल में. हाउ कैन आई यूज दैट अमाउंट टू गेट the percentage of sales? What do I do? Sales है ना, तो what do I do? We divide it, exactly, we divide it. किसका निकालते हैं? 20% ऑफ समथिंग या 30% ऑफ समथिंग या 50% ऑफ समथिंग, किसका निकालते हैं? ये आ गया 20% ऑफ, इसका नाम मुझे लगता है यही है, चेक कर लें, आई एम नॉट श्योर. Sales, yeah, this is the name. So I'll just copy it. This is the name. You get the point? This was the name of this text box. It was the name of it. जो इसका name होगा, अपने properties देखना इसका नाम क्या है. Does this make sense? So अगर यहाँ selected है 20, so it will say 20% of the sales. So let me just save it and let's try. So if I select from here is 0, it says 0. Obviously, if I select from here 10, it calculates 10% of this, and you can see 10%. And if I select from here is 20%, that's the 20%. If I select from here is 40%, that's the 40%. Have you not made a very good automated system right now? And it's pretty easy. मेरी बात में आप मानोगे है आसान. You just have to think over it. Okay, इसी चीज के marks हैं. You get the point? This is the third way you can work with this. Okay, आप जितनी मर्जी amount select करोगे, it is going to work. क्योंकि आपकी planning proper. Yes or no? Clear or not? This was the third part of the lecture. मैं macro को भी repeat कर देता हूँ इसके बाद. Macro का concept ये था कि the reason why I had to program with macro was because मुझे एक if then else condition चाहिए. There is no other way I can do it. मैं चाह रहा था कि मैं एक ही बटन को यूज करते हुए I can select multiple reports एक ही record की. अभी देखो, अभी तो मैंने ये बनाई है ना बेटा. Let's say I have this, I have this query. इसी query की different बना लेते हैं. Let's say I'll go to create, I'll go to report visit. Just listen to it carefully. मैं इधर आता हूँ, मैं इनको ट्रांसफर करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कॉलमनर ही कर देते हैं, नेक्स्ट फिनिश. मगर लेट्स जस्ट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट एंड मेक समथिंग डिफरेंट. ओके, ये रखते हैं. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू द एंटायर थिंग अगेन. और ये कर देते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं करता हूँ कट. ऐड दिस, I can paste this over here. ठीक है, I can just do is कि इसका ठीक है, थोड़ा मैंने चेंज कर दिया. यू गेट द पॉइंट? दिस इज व्हाट आई हैव. सो आई हैव अनदर क्यूरी जिसमें मेरा यू यू प्रिंट हो रहा है. एक इस तरह का है और एक इस तरह का है. ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि ओवर हेयर आई कैन हैव अनदर ऑप्शन कि लेट मी टेक इट डाउन एंड प्रिंट इन क्यूरी 1 और प्रिंट इन क्यूरी 2. इसको हम कर देते हैं एज रिपोर्ट 1 so that it's not confusing for us. I can name this as report. No, not report. It's not a report. It's in invoice 1 and
इनवॉइस 2। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, ये मेरा इनवॉइस 1 में आ रहा है और ये मेरा इनवॉइस 2 में आ रहा है। गेट द पॉइंट। सेम record printed in two different invoices report format. Clear or not? Sure? ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस तरह करेंगे, आपको वैसे इसको लिंक कर देते हैं। इफ आई सेलेक्ट मगर किस तरह, इफ आई क्लिक ऑन दिस, वो तो हमेशा इसको ओपन करेगा। आई मीन आई शुड हैव एन ऑप्शन। चलो वो भी बना लेते हैं, मगर फिर भी मसला सॉल्व नहीं होगा। लेट्स से आई कैन हैव ओवर हियर इज सेल्स परसेंटेज कमीशन। इसको थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। पेरोल को जरा ऊपर कर लेते हैं। पेरोल जरा इंपॉर्टेंट चीज है। और let's make another XYZ here. Go. And we can have over here is invoice 1, invoice 2. ठीक हो गया बेटा, आप देख रहे हो? You writing down? Huh? Next, next. I leave the values 1 and 2. Come on, right beta? Next and finish. Again, it's better कि आप तो अच्छा बनाया करो. It should be more presentable. No, it's bigger. It's plus 12, and you can say over here is select the invoice type. Here we go. और करते हैं. Let's see how it looks. Fine. Yeah, but I'm better. मगर I'm not working on it right now. Let's not. So मैंने select किया इधर से ये, मैंने select किया 20% और मैंने कहा इसमें print करते हैं, किया ये आया, इस पे किया, नहीं आया। वो obviously नहीं आएगा, मैंने connect ही नहीं किया। But do you get the scenario? अब मसला कहाँ आ रहा है? मसला ये आ रहा है, ये जो बटन है ना, this button is only linked with this. मैं जब भी जो भी करूंगा इसकी लिंक तो इससे हुआ है। अब दिस, अगर इफ आई हैड लेट्स से 5 इनवॉइसेस डिफरेंट, एक ही रिकॉर्ड की 5 डिफरेंट प्रिंट आउट्स कैटेगरीज, देखो आप चाहते हो ना कि जो गोल्ड मेंबर है उसको मैं किसी अच्छे और इनवॉइस प्रिंट करूं, जो स्टैंड मेंबर है उसको इनवॉइस किसी और की तरह कर दूं। मे बी इट्स अ रिक्वायरमेंट। आई वांट टू लाइक गिव डिफरेंट लेवल्स टू माय क्लाइंट्स। ये बात समझ रहे हो? तो अब एक ही सॉफ्टवेयर में यूज करते हुए यू कैन प्रिंट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, और ये प्रोफेशनली यूज होता है। मे बी व्हेन यू बिकम एंटरप्रेन्योर आपको भी जरूरत पड़ेगी अपने काम के लिए। कैन यू, आई वांट दिस सिस्टम टू बी डेवलप्ड। आईटी का ही फायदा होगा कि इवन इफ यू आर योर ओन एंटरप्रेन्योर, आप यू कैन टॉक टू इवन आईटी मैनेजर इवन इफ यू हायर समवन। आई नो इट कैन बी डन, आई हैव डन इट। आपको आइडिया होगा। If you don't have the knowledge of something, you will just keep on listening to everyone, and people can fool you. We're not talking about that anyway, but you get the point. So what we'll do is, Iman, concentrating. Okay, you can shake your head if you're not. Okay, right? Now what we'll do is कि ये बटन मेरे लिए बेकार हो गया, इस बटन का फायदा ही कोई नहीं है, ये तो मुझे चाहिए नहीं बटन। मुझे एक बटन चाहिए जिसके बैकएंड पे if then else condition लगी हो। So what I'll do is I'll go into create and I'll make a macro. Macro is the way you can add VBA coding at the back of any of the object. So macro are used to insert visual VBA coding at the back. कि Microsoft के जितने भी ऑफिस पैक होते हैं उसके अंदर आप VBA कोडिंग लगा सकते हो। पावर पॉइंट में भी लगा सकते हो, हमारे सिलेबस में नहीं है। AICT में था, वेरी इंटरेस्टिंग, मगर उन्होंने निकाल दिया। तो मगर इसमें ये सिलेबस में रहा है, मैक्रो ओवर हियर इज देयर। सो आई क्लिक ऑन मैक्रो, और बड़ा आसान है वैसे, इट्स वेरी इजी। मैं यहाँ से यूज करूंगा इफ, और मैं कहूंगा इफ आई गो टू माई वही टिपिकल चीज फॉर्म एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर्म 1 एक्सक्लेमेशन मार्क फ्रेम 16 था जो नया वाला बना ना, द वन वेयर आई हैड द रिपोर्ट टाइप, वो फ्रेम 16 था अभी नए वाला। डॉट वैल्यू, आई डिड नॉट चेंज द वैल्यू। इफ इट्स इक्वल टू 1, I put it 1 in double quotes please. Yes, अगर मैंने 1 select किया तो क्या करें, फिर मुझे करे print open report is 1। ठीक है, else वो एक typical बात, forms form 1 frame 16 dot value is equals to 2। फिर क्या करें, open report
ये और voice 2 and in the print preview. Any problem? Yes or no? What I can do is snipping tool, right? हाँ, open report है बेटा दोनों, हाँ? I didn't get the point बेटा. कहाँ गलती की है? गलती? I देखो, if I click on this, then it open report और यहाँ भी open report ही है. Preview, अच्छा अच्छा, हाँ. Let me change that. आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है. जी, हम वो मैंने करना है, मैं तो प्रीव्यू करना है. आप आई डोंट वांट टू एडिट ना, मैं तो क्लाइंट की फैसिलिटी बनानी है. सो मैं इसका कॉपी कर देता हूँ सो दैट एंड आई शेयर इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप कि किसी को अगर चाहिए हो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, राइट. अब हम क्या करेंगे, इसको मैं जस्ट सेव इट. ठीक है, सेव हो गया. अब आई विल मेक अ बटन miscellaneous. Okay, button miscellaneous. And you do is next. No, sorry, it's like macro. No, next. Select the macro. Next, अगर समझ आएगा मुझे करने की जरूरत नहीं. And we can say is print. Next, finish. There is a button. Now let's experiment. So I'll select from here is particular record. I select is 10%. Invoice 1. I get invoice 2. बिल्कुल ठीक हो गया. I select invoice 2. I get invoice 2. You get my point. Important बात ये है कि वही record आ रहा है. You see, it's Lombardo, whatever it is, and you see it's Lombardo. It's the same record. मैं चाह भी यही रहा. You get the point. Any question regarding till here? Yes or no? मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, प्लीज उसको सोचो कि आज प्लीज ऑल ऑफ यू आर ऑनलाइन एज वेल. आई एम गिविंग यू 2 minutes. ओके, आई एम गिविंग यू 2-3 minutes. अब दोबारा सोचो, आपके सामने है कि ये सारे स्टेप मैंने क्या क्या किए हैं, किस तरह किए हैं. रन ऑल द प्रोसीजर इन योर ब्रेन अभी राइट नाउ, स्टेप बाय स्टेप. पहले से मैंने क्या किया क्या किया क्या किया, और कुछ स्टेप समझ नहीं आते मुझे भी पूछो कि सर ये स्टेप किस तरह किया था. ओके, क्रिएट अ मेंटल मॉडल राइट नाउ. आई एम गिविंग यू टाइम. फॉर्म पे क्या नहीं बनाया बेटा? नहीं, क्यूरी की तो रिपोर्ट बनाई है. सबसे सबसे पहले मैंने फॉर्म बनाया था. वेरी गुड. मैंने परफॉर्मेंस से पहले सबसे स्टेप पहले मैंने ये बनाया था. ये बनाने के बाद मैंने मैंने क्यूरी बनाई. क्यूरी मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैंने इनवॉइस बनाई थी. इनवॉइस और रिपोर्ट हो, यू हैव टू मेक क्यूरी. तो क्यूरी बना के मैंने इसका पाथ डाला, उसी के अंदर इसका मतलब इसका पाथ ना, पेरोल नंबर का पेरोल नंबर डाला. व्हाट आई एम सेइंग इज ये पेरोल के पाथ डाला. इसकी जो आउटपुट आई, इसके मैंने बना लिया ये इनवॉइस. ये दोनों नहीं थे उसमें, सिर्फ ये था. ठीक है, बन गया. देन मैंने जाके ये ऐड किया टेक्स्ट बॉक्स से. मगर बिफोर आई एडिट दिस, मैंने पहले ये ऐड किया. पहले फिर मैंने ये ऐड किया. ये ऐड करने के बाद क्या किया, मैंने ये ऐड किया. फिर मैंने ये ऐड किया. मेरा काम चल गया. मगर आई हैड टू मेक ये बटन. इस बटन के लिए हमने मैक्रो बनाया. ठीक है, और सॉरी, उससे पहले हमने पहले ये बनाया, क्योंकि मैक्रो की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैंने इस पे करना था कि
if I select this, open this. If I select this, open this. So macro was needed for the if then else command. यहाँ तक if then else command की जरूरत नहीं थी. ओके क्योंकि मेरी एक ही रिपोर्ट थी. जब दो रिपोर्ट आई ऑफ द सेम रिकॉर्ड, दो रिपोर्ट ऑफ द सेम रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ इस बात पे. ओके आपको समझ का काम करना. देन आई वांटेड मैक्रो एंड आई हैड टू एम्बेड द मैक्रो इन माय बटन. यस और नो. ये मैं जो आपको बार बार कह रहा हूँ ना, अपना एक मेंटल मॉडल क्रिएट करो. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रहा हूँ. इफ यू डू दिस बिफोर एवरी क्वेश्चन, थिंग्स विल बी लॉट इजियर फॉर यू. पहले बैठ के सोचो कि व्हाट डू आई हैव टू डू. और अब एक तो कि ऑब्वियस ही बात है, एवरीवन डज इट, मगर आप उतने फोकस नहीं होते. मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सोचो कि आई विल डू दिस, देन आई विल डू दिस, देन आई विल डू दिस. हाँ, you start using this methodology. Next time when you solve paper, आपसे आराम से हो जाएगा, because you know all that. Piece of cake. Yes or no? So अब एक काम करो फिलहाल बेटा, दोज ऑफ यू आर ऑनलाइन एज वेल, मैं आपको 15-20 मिनट दे रहा हूँ, आधा घंटा दे रहा हूँ. आप कोई भी डेटाबेस ओपन करो जिसमें एक प्राइमरी की हो. ओपन अप एनी एक्सेस डेटाबेस एंड यू प्रैक्टिस दिस बिफोर आई गिव यू एन एक्टिविटी टू सॉल्व. उसके बाद ठीक है ना, क्योंकि मैं आगे जाता जाऊंगा फर्दर डिस्कशन. इफ यू आर अनएबल टू डू टिल हियर, फायदा नहीं होने लगा. इसकी प्रैक्टिस करो. मैं ठीक है, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग लाइक हाफ एन आवर वट एवर. आई वॉन्ट यू टू डू दिस एंड डिस्कस विद मी एंड शो इट टू मी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा. आई जस्ट पॉज द लेक्चर नाउ. In fact, I'll just stop it.